Good morning, students. Today we'll start with adjustments. Okay. Point number one: every adjustment has two or more effect. Every adjustment has two or more effect. One effect is debit, and another effect is credit. Now, adjustment number one: closing stock. So first, we have to value closing stock. In exam question, cost is also given, and market price also given for a closing stock. So valuation should be done cost or market price, whichever is less. Say for example, cost is 40,000 and market price is rupees 45,000. तो cost or market price whichever is less, जो कम रहेगा वो लेने का 40,000. Effect. So when you see the effect, one effect should be debit and another effect should be credit. Trading account credit side means credit effect, and balance sheet asset side means the effect. So effect is trading account credit side, credit effect. Balance sheet asset side means debit effect. Next, depreciation of assets. Depreciation means what? Decrease in the value of assets due to its continuous is called as depreciation. So depreciation is a non-cash expenditure. We charge depreciation on fixed assets. We charge depreciation on fixed assets, either tangible or intangible. So in 11th and 12th standard, even including CA foundation, because this is a final accounts of non-manufacturing concern, means proprietorship ka hai. So again, depreciation is debited to profit and loss account. So depreciation means what? Decrease in value of assets. So less from assets. And second effect, profit and loss account debit side. Less from assets means credit effect. Asset कौन सा बैलेंस है? डेट बैलेंस है. asset कौन सा बैलेंस है? डेट बैलेंस है. asset में से माइनस करोगे, इफेक्ट होगा क्रेडिट. एंड सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड means debit effect. Next is outstanding expenses or unpaid expenses or expenses payable or accrued expenses. ये सबका मीनिंग only there is one meaning, that is outstanding expenses. Now outstanding expense means we have incurred the expenses, we are not paid. हमने सर्विस लिया है, हमने जगह रेंट पे ली है, बट हमने रेंट पे नहीं किया है. Say for example, rent for the month of March. Rent for the month of March is paid in April. So as on 31st March, when I am preparing my balance sheet, as on that date, that rent is outstanding. So add to rent, outstanding means add to rent, and any expense, if it's outstanding, is liability. So add to expenses and balance sheet every side. Add to expense, expense कहाँ पे आएगा? Either trading account debit side or profit and loss account debit side. तो expense में add करोगे तो effect will be debit, and balance sheet liability side means effect will be credit. तो add to expense debit effect. क्यों सर expense कहाँ पे आता है? डेबिट में ही आता है, या ट्रेडिंग डेबिट में आएगा या पीएल डेबिट में आएगा. ओके. एंड सेकंड इफेक्ट, ये लायबिलिटी है, एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट इसके बाद है आउटस्टैंडिंग इनकम. Outstanding income, or I can say income receivable. Accrued income. Accrued means again outstanding. And last is income earned but not received. Say for example, commission due but not received. पैसा कमा लिया, मिला नहीं. Again, income is outstanding. Say for example, commission for the month of March. Commission for the month of March. When I will receive commission for the month of March, I will receive that commission in the month of April. But as on 31st March, that commission is receivable, means वो commission का पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो हमारे लिए क्या asset है. ओके. और मार्च की इनकम भी करंट में आनी चाहिए, भले रिसीव नहीं किया है लेकिन है तो करंट की इनकम. ओके. तो एड टू रिस्पेक्ट टू इनकम, जो भी इनकम है उसमें ऐड करो, तो इफेक्ट विल बी क्रेडिट इफेक्ट. एंड बैलेंस शीट असेट साइड, क्यों पैसा लेना है
तो हमारे लिए असेट है, तो बैलेंस शीट असेट साइड। इफेक्ट एड टू इनकम, इनकम कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इनकम में ऐड किया तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। इनकम में ऐड किया तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। एंड बैलेंस शीट असेट साइड मींस डेबिट इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, और आई कैन से unexpired expenses or expense paid in advance. Expense in advance means expense of next accounting year paid in current year, अगले साल का एक्सपेंस है, तो यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल ले, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, तो जो भी एक्सपेंस प्रीपेड है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो उस इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, expense of next accounting year paid in current year is asset for the current year, तो लेस फॉर एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां पे आता है? पीएनएल और डी अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड से माइनस करोगे तो इफेक्ट कौन सा होगा? इफेक्ट होगा क्रेडिट इफेक्ट होगा। ओके, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस क्रेडिट इफेक्ट। एंड बैलेंस शीट असेट साइड मींस डेबिट इफेक्ट। Students, keep in mind, when you give effect to the adjustment, see to it, one adjustment is debit and another adjustment is credit. Okay, now next is pre-received income, or I can say income received advance, income of next accounting year paid in current year, income of next accounting year paid in current, अगले साल की इनकम ये साल पे की है, income of next accounting year if paid in current year, it is liability for the current year, तो फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। एंड लेस फ्रॉम इनकम, सर इनकम से माइनस हो रहा है, इनकम कौन साल की है? ये तो इनकम अगले साल की है। ओके, तो यहाँ क्या कर रही है? चल निकल ले, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बिकॉज ओनली करंट ईयर इनकम एंड करंट ईयर एक्सपेंस इज क्रेडिटेड और डेबिटेड। कुछ भी अगले साल करेगा या पिछले साल करेगा, ऑलवेज हम क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। ओके, तो कीप इन माइंड, तो लेस फ्रॉम इनकम, इनकम कहां पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड से माइनस करोगे इफेक्ट होगा डेबिट। एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड इफेक्ट होगा क्रेडिट। नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, मैंने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की एज इन फ्री सैंपल्स बिकॉज आई हैव लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया मैंने मार्केट में, तो जब तक लोग वो सैंपल यूज नहीं करेंगे, ओके, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुड्स, विच टाइप ऑफ गुड्स, हु इज द ओनर, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या क्वालिटी क्या उसकी, व्हाट इज सर्विस, सब नहीं समझ में आएगा, तो दे डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल्स। तो गुड्स में क्या बांटोगे? ऑलवेज फिनिश गुड्स बांटोगे। ओके, तो गुड्स गया to the account credit side, तो when you distribute the goods, goods will goes out of the business to the account credit side। and goods क्यों बांटा? for advertisement। ओके, तो for advertisement means profit and loss account debit side, तो ट्रेडिंग में क्या लिखोगे? buy goods distributed as free samples, and profit and loss account will write to advertisement, and in bracket you will write free samples। फिर में क्या लिखोगे? to advertisement, and bracket में लिखोगे free samples। this is goods uses free samples। again effect बताता हूँ, trading account credit side means credit effect, trading account credit side means credit effect, and balance sheet and profit and loss account debit side means debit effect। goods withdrawn by proprietor for personal use, goods withdrawn by proprietor for use। now goods withdraw किया ओनर फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस में से उसने गुड्स निकाला, क्या लिए निकाला? फॉर पर्सनल यूज, तो गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो विच इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। नाउ इट इज अ ड्राइंग्स, तो व्हेनेवर देयर इज अ ड्राइंग्स इज रिड्यूस कैपिटल, तो लेस फ्रॉम कैपिटल, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिंस गुड्स गोज आउट, एंड लेस फ्रॉम कैपिटल सिंस इट इज अ ड्राइंग्स and drawings lose the capital। now effect trading account credit side means credit effect, less from capital, capital is recorded where? balance sheet liability side, तो liability side से माइनस करोगे तो इफेक्ट कौन सा होगा? डेबिट इफेक्ट होगा, तो trading account credit side credit effect, and less from capital debit effect। unrecorded sales, okay, say for example
goods sold on 29th March 2021 but was not recorded till the year end, या it is recorded in 5th April. तो गुड्स सेल कर दिया है, बस सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया. रिकॉर्ड किया, कब रिकॉर्ड किया? नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड किया. कहाँ रिकॉर्ड किया? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में. बट माई आई प्रिपेयर बैलेंस शीट विच डे 31st March. तो एज ऑन 31st March गुड्स आर सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड. तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा. बट यू रिकॉर्ड द सेल्स, योर सेल्स आल्सो इंक्रीजेस. अब सेल्स किया तो कस्टमर से तो पैसे भी लेने हैं, तो एड टू डेटर्स. तो एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स. एड टू सेल्स मींस क्रेडिट इफेक्ट. सर कैसे? सेल्स कहाँ पे आता है? टुडे अकाउंट क्रेडिट साइड, तो सेल्स में ऐड किया है तो क्रेडिट इफेक्ट. एड टू डेटर्स, डेटर्स कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट असेट साइड, असेट में ऐड किया तो कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट. तो एड टू सेल्स क्रेडिट इफेक्ट एंड एड टू डेटर्स डेबिट इफेक्ट. Next is unrecorded purchase. Okay, goods worth ₹10,000 purchased on 20th March 2021 but what not recorded, या no entry has been passed. Okay, तो unrecorded purchase को purchase करोगे तो एंट्री आएगा purchase account debit to creditors account. एंट्री आएगा purchase account debit to creditors account. तो my after recording my purchase will also increase, my creditors will also increase. So add to purchase, add to creditors. Purchase, add to purchase means debit effect. क्यों सर? परचेज कहाँ पे आता है? टुडे अकाउंट डेबिट साइड, तो टुडे डेबिट में ऐड किया, क्रेडिट इफेक्ट. क्रेडिटर्स कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उसमें ऐड किया तो कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट. तो एड टू परचेज डेबिट इफेक्ट एंड एड टू क्रेडिटर्स क्रेडिट इफेक्ट. Next है bills receivable dishonored. Bills receivable dishonored. So when you draw the bill, entries bills receivable account debit to debtors account. So when you draw the bill, your bills receivable increases and your debtors decreases. Okay. Now on the date, bill was presented to debtors for payment and debtor dishonored the bill. So to pass reverse entry, so in that case entry will be drawee account debit to bills receivable account. Drawee means what? Debtors. So entry will be debtors account debit to bills receivable account. So my date, when bill is dishonored, again my debtors will increase and my bills receivable decrease. Add to debtors means debit effect. Add to debtors means debit effect. क्यों सर? debtors कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आता है. ओके, पॉइंट क्लियर. तो डेबिट इफेक्ट और बिल्स रिसीवेबल में सबने माइनस किया, बिल्स से माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है? साइड पे आता है, तो एसेट से माइनस करोगे तो इफेक्ट कौन सा होगा? क्रेडिट इफेक्ट होगा. ओके, पॉइंट क्लियर. तो ये केस है. तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल मींस क्रेडिट इफेक्ट and add to debtors means debit effect. Next, bills payable dishonored. इसका अभी exactly reverse case. Okay, so when we accept the bill, entries creditors account debit. When we accept the bill, entries creditors account debit to bills payable account. Okay, so at that time my creditors reduce and bills will increases. जब bill accept करते हैं, अब जो बिल एक्सेप्ट किया वो डिसऑनर्ड हो गया. तो व्हेन योर बिल इज डिसऑनर्ड, एंट्री पास रिवर्स एंट्री. तो बिल इज डिसऑनर्ड मींस माय क्रेडिटर्स विल इंक्रीज एंड माय बिल्स पेबल विल डिक्रीज. ओके, तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, सॉरी, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एंड ऐड टू क्रेडिटर्स. बिल्स पेबल कहां पे आता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो बिल्स पेबल में से माइनस करोगे तो इफेक्ट होगा डेबिट इफेक्ट. क्यों? बिल्स पेबल कहां पे आता है? लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी से माइनस करोगे तो इफेक्ट होगा डेबिट. क्यों सर? लायबिलिटी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है. एंड एड टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कहां पे आता है? अगेन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आता है. राइट, पॉइंटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे आता है. तो लायबिलिटी साइड पे ऐड करोगे इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट इफेक्ट होगा कि क्रेडिटर्स हैज क्रेडिट बैलेंस, और उसको ऐड करोगे तो इफेक्ट भी क्या होगा?
क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो एड टू बिल्स पेबल एंड एड टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले समझना है कौन पे करेगा, किसको पे करेगा। नॉट इज नॉट इन पार्टनरशिप फॉर्म, ये प्रोप्राइटरशिप फीस है। ओके, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। ओके, तो इन दिस केस firm will pay interest to whom? Owner. So in that case, expense for the firm to profit and loss account debit side, to profit and loss account debit side, and income for owner to add to capital. So transaction between owner and firm is recorded in capital account. So in this sorting concern, we do not prepare capital account, we adjust in balance sheet only. So profit and loss account debit side, since expense for the firm, debit effect. Add to capital means credit effect. कैपिटल कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आता है। कैपिटल में ऐड करोगे तो इफेक्ट कौन सा होगा? क्रेडिट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका रिवर्स केस। ओके, नाउ इन दिस केस owner has withdrawn the money, cash from his business for his personal use. In that case, owner has to pay interest on drawings to firm. तो कौन पे कर रहा है? ओनर पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है? फर्म को पे कर रहा है। तो ओनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो लेस फ्रॉम कैपिटल, और बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन पे करेगा? ओनर पे करेगा। किसको पे करेगा? फर्म को। तो फर्म के लिए क्या है? इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड मींस क्रेडिट इफेक्ट। एक्सपेंस फॉर द ओनर के लिए एक्सपेंस है, तो लेस फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल में से माइनस करोगे, कैपिटल कहां पे आता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वहां से माइनस करोगे तो इफेक्ट होगा डेबिट इफेक्ट। ओके, next, when goods are given away as donation. Now donation is also in a drawings. Donation, goods given as donation is also in a drawings. It is not an expense. So when goods are given as donation, again goods goes out, trading account is credited. Trading account credit side means credit effect, and it is a drawings, so less from capital. Trading account credit side means credit effect, less from capital means the effect. Capital comes on which side? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड से माइनस करोगे तो इफेक्ट होगा डेबिट। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी। नाउ सी मेरा बिजनेस है, ओके, पॉइंट हियर, और उस बिजनेस से मैंने कुछ गुड्स यूज किए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। ओके, मेरा बिजनेस था आयरन रॉड, स्टील पाइप बेचने का, राइट। तो उसी में मैंने कुछ अपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनाई, या मैंने कुछ मशीनरी बनाई, या मशीनरी के लिए मैंने स्टैंड बनाया, तो उसमें ही मैंने गुड्स यूज कर लिया। तो व्हेन गुड्स आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी, नाउ ये जो गुड्स यूज किया है इज नॉट फॉर पर्सनल यूज, ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये बिजनेस यूज के लिए, तो ये ड्राइंग्स नहीं होगा। ओके, so when goods are used for construction of building or machinery, it is an capital expenditure. It is an capital expenditure. So when capital expenditure is added to added to plant and machinery, to add to plant and machinery, because since it is in capital expenditure, it has to be capitalized. To add to plant and machinery. Or when goods are withdrawn, okay, तो goods गया trading account credit side. तो goods withdrawn, goods used for business for construction of building and machinery, so goods goes out trading account credit side, credit fed. Add to plant and machinery means debit fed, since plant and machinery comes under balance sheet. Okay, pointer, अगर balance sheet में add करोगे तो इफेक्ट कौन सा होगा? डेबिट इफेक्ट होगा। Okay, now next, when goods are used for maintenance
ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस और मशीनरी, अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के लिए या अपनी मशीनरी के लिए, बिजनेस की मशीनरी, बिजनेस के प्रीमाइसेस के लिए हमने गुड्स यूज किया। फॉर एग्जांपल मेरा सीमेंट कंपनी है, नाउ सीमेंट कंपनी मेरा एसीसी फॉर एग्जांपल, और मेरे बीच में कुछ कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग वर्क चल रहा था, तो उसमें मैंने क्या किया, सीमेंट निकाला और उसमें मैंने यूज कर लिया। पॉइंट है, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज गुड्स यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस एंड मशीनरी। घर का नहीं बिजनेस है, तो अगेन गुड्स गोज आउट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट फैक्ट एंड एड टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्यों गुड्स का यूज किया, रिपेयर मेंटेनेंस को, तो जितना भी गुड्स यूज हुआ है उसका जो भी कॉस्ट होगा वो हम क्या करेंगे, रिपेयर्स मेंटेनेंस में ऐड करेंगे। अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दिया है तो उसमें ऐड करो, नहीं दिया है तो अलग से लिखो। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड मींस क्रेडिट फैक्ट एड टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नाउ रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है, वो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो कौन सा इफेक्ट, डेबिट फैक्ट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्रेडिट फैक्ट एंड profit and loss account debit side add to repairs and maintenance means debit effect. Next 18. Now ये तुम लोग के लिए नया है. Okay, this adjustment is new for you. Goods sent for sale or approval. Now suppose goods are sent on sale or approval. Okay, but customer has not intimated about the purchase of goods. Neither period of use 15 days 20 days has been done. Okay, in that case this whatever goods is with the customer, जो भी कस्टमर के पास गुड्स है वो हमारा गुड्स है, वो सेल नहीं है। ओके, वो सेल नहीं है, लेकिन जब हमने भेजा था हमने सेल की एंट्री पास कर दी थी, लेकिन एक्चुअल में सेल्स नहीं है। ओके, तो इसका हमको इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा हम लोग को। तो जब हमने सेल किया होगा ना, सेल कौन से प्राइस पे करोगे, सेल करेंगे सेलिंग प्राइस पे, सेल करेंगे सेलिंग प्राइस पे। पॉइंटर, तो हमने एंट्री क्या पास किया रहेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स को भी बढ़ा दिया रहेगा, हमने सेल्स को भी बढ़ा दिया रहेगा, हमने डेटर्स को भी बढ़ा दिया रहेगा, हमने सेल्स को भी बढ़ा दिया, राइट। लेकिन अब वो सेल्स नहीं है, इट इज नॉट इन सेल्स, इज अवर स्टॉक, तो उसका मानेंगे, हम उसको मानेंगे वो रिटर्न्स है, वो क्या है, रिटर्न्स है। ओके, तो सेल नहीं है, तो जो सेल की एंट्री पास की है एट सेलिंग प्राइस पे उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो लेस फ्रॉम सेल्स एट सेलिंग प्राइस। क्यों सर सेलिंग प्राइस, बिकॉज गुड्स कौन से प्राइस बेचा होगा, मैंने सेलिंग प्राइस बेचा होगा, तो लेस फ्रॉम सेल्स एंड लेस फ्रॉम रिटर्न्स। जब मैंने सेल की एंट्री पास की थी, आई हैव इंक्रीज माय डेटर्स एंड इंक्रीज माय सेल्स, but it's not in sales now, sales nahi hai, so that entry has to be cancelled, but goods are sold at which price, selling price, तो cancellation भी किस पे होगा, selling price पे होगा, तो less from sales and less from debtors, both at the selling price. Okay, अब जो कस्टमर के पास जो गुड्स है वो गुड्स कस्टमर का नहीं है, वो हमारा स्टॉक है, तो जब हमने गुड्स सेल किया होगा हमने क्लोजिंग स्टॉक कम कर दिया होगा, अब वो स्टॉक हमारा स्टॉक है, तो फिर से मेरे को क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करोगे सर कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो सेल्स में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कभी कभी कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया एग्जाम में, कभी कभी तुम लोग को परसेंटेज ऑफ सेल्स या परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा एड टू क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट है, एंड एड टू क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। सर दो दो बार क्यों लिखा है, क्योंकि स्टॉक एडजस्टमेंट का पार्ट है, हम स्टॉक दो जगह लिखते हैं, एक लिखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे और एक लिखते हैं हम बैलेंस शीट के असेट साइड पे। ओके, तो एड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, ऐसे कर सकते हो, या तुम क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर लो, से फॉर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 10,000 है और सेल ऑन अप्रूवल का उसकी कॉस्ट है 2,000 है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000
एट गुड्स ऑन सेल बेसिस एट कॉस्ट 2000, कितना आ गया 12,000, और वही 12,000 तुम कहां लिखोगे बैलेंस शीट के असेट साइड पे। तो तुमने ऑलरेडी ऐड करके ही बाद में तुमने 12,000 लिखा है, तो इसका दो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, इसका एक ही इफेक्ट आएगा। तो एड टू क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग में ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही तुम बैलेंस शीट में ले लो, तो वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जानबूझ के मैंने 2 बार दिया है ताकि तुमको कंसेप्ट अच्छी तरह समझे। तो एड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑन बैलेंस शीट साइड, और उसके दो इफेक्ट है। तो जो ट्रेडिंग में क्रेडिट में आएगा वही बैलेंस शीट में आएगा, तो तुम एक ही बार ऐड करोगे तो भी चलेगा। तो ये पहला एडजस्टमेंट है, इसके कितने इफेक्ट है 4 इफेक्ट है। कितने इफेक्ट 4 इफेक्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद है बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ। क्या है बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ? डेब्ट्स व्हिच आर नॉट रिकवरेबल, debts which are not recoverable from customer is called as bad debts. Okay, now this bad debt written off is my actual bad debts, कि हमको मालूम पड़ गया है कि ये जो बंदे हैं हमारा पैसा नहीं देने वाले। ओके, इन लोग हो गए इंसॉल्वेंट, या ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, या पर ये इनका डेथ हो गया है, या परमानेंटली लोग शॉप बंद करके चले गए। ओके, तो नाउ जब बैड डेब्ट्स होगा तो डेटर्स पैसा देने वाले नहीं है, तो जो भी पैसा नहीं आने वाला है वो माइनस करना पड़ेगा, उसको डेटर्स में रख के मतलब नहीं है। ओके, तो लेस फ्रॉम डेटर्स, ये मैं एक्चुअल बैड डेब्ट्स है, तो लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से माइनस करोगी तो कौन सा इफेक्ट सर? क्रेडिट इफेक्ट। सर क्रेडिट इफेक्ट कैसे? डेटर्स कहां पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। कहां पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। एसेट साइड से माइनस करोगी तो इफेक्ट होगा क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्यों सर? बैड डेब्ट्स लॉस है, कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ऐड टू बैड डेब्ट्स, तो ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स दिया रहेगा उसमें ऐड करने हैं, मैंने बोला था। ओके, हमने लास्ट में पढ़ा था बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में दिया होगा और ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। जो बैड डेब्ट्स और जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ओल्ड बैड डेब्ट्स है, ओल्ड ऑलरेडी है। जो भी एडजस्टमेंट में दिया है वो न्यू बैड डेब्ट्स है और न्यू ऑलरेडी है। जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसके एक इफेक्ट आएंगे, जो एडजस्टमेंट में दिया है उसके 2 इफेक्ट आएंगे। ओके, तो लेस फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट इफेक्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्या करोगे उसमें बैड डेब्ट्स में ऐड कर दोगे तो डेबिट इफेक्ट। हम देखेंगे इसे प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट 20, प्रोविजन और रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, पीडी या आरडीडी। ना मेरे को लग रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स मेरा 1,02,000 है, उसमें से 2,000 तो आने वाला नहीं, मैंने माइनस कर दिया। अब 1,00,000 का जो डेटर्स मैंने लिखा है बैलेंस शीट में, ओके बैलेंस शीट पे, आउट ऑफ दैट मींस 1,00,000 आई एम थिंकिंग दैट, या मेरे को ऐसा लग रहा है, या बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आई फाइंड आउट के माय एवरी ईयर माय बैड डेब्ट्स इज 5%। जो 1,00,000 में से ये 5% तो आने ही नहीं वाला है। ओके, तो ये कब नहीं आएगा? अगले साल नहीं आएगा, उसका प्रोविजन हम आज ही करेंगे। बिकॉज अकाउंटिंग में कंसेप्ट है, अकाउंटिंग में कंसेप्ट है। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, टू रिकॉर्ड ऑल द फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फ्यूचर में जो भी एक्सपेंस होने वाला है, फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाला है, उसको आज ही रिकॉर्ड करो। तो डेटा जो बैलेंस में 1,00,000 दिया है वो अगले साल उसमें से 5% नहीं आने वाला है, तो उसका प्रोविजन हमको इसी साल करना पड़ेगा। ओके, तो जब प्रोविजन करोगे तो मेरा डेटर्स क्या होगा? कम होगा, तो लेस फ्रॉम डेटर्स। ओके, ना ये मेरे लिए क्या आएगा? एक्सपेंस है, तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड एक्सपेंस है, या मैं बोल सकता हूँ ये मेरी लॉस है, फ्यूचर लॉस है जिसका प्रोविजन हमने आज किया है, तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगेन क्या करोगे? ऐड टू बैड डेब्ट्स। तो सर फॉर्मेट क्या हो जाएगा? Two bad debts, add a new bad debts, add a new RD, less old RD. तो ये हम लोग का प्रेजेंटेशन है। ओके, तो प्रोविजन और रिजर्व बैड डेब्ट्स इज कॉल्ड एज पीडीडी और आरडी। ओके, तो ये फ्यूचर एक्सपेंस या लॉस है, इसका जो हमें आज करना है। तो लेस फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मींस डेबिट इफेक्ट।
नेक्स्ट, recording bad debts and provision for debts, okay, in balance sheet and P&L. तो इसको बैलेंस शीट में और P&L में कैसे रिकॉर्ड करना है देखते हैं अपन. प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट एंड प्रेजेंटेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, नाउ सी प्रेजेंट बैलेंस शीट. डेटर्स, पहले जो डेटर्स ट्रायल बेस में दिया है वो ले लो. एड ऑल अदर एडजस्टमेंट, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, डिसऑनर्ड, अनरिकॉर्डेड सेल्स. तो जितनी भी एडजस्टमेंट डेटर्स पे अदर देन बैड डेब्ट्स, आरडी एंड डिस्काउंट, सारी एडजस्टमेंट ले लो, खत्म कर लो पहले. ओके, ऐड है तो ऐड कर लो, लेस कर लो. ओके, फिर ये आएगा, ये हम लोग का बैलेंस डेटर्स होगा. अब इस डेटर्स में से कुछ पैसा नहीं आने वाला है, तो इस डेटर्स में से तो ये मैं एज पर ट्रायल बैलेंस ले लो. फिर जितनी वजह से अनरिकॉर्डेड सेल्स है, बिल रिसीवेबल, डिसऑनर्ड है, वो सारी तो माइनस कर दो. ओके, ना ये जो पैसा है मेरे को एक्चुअल लेना है, उसमें से 2000 का जो रुपया है बैड डेब्ट्स है वो नहीं आने वाला है, बिकॉज जिससे पैसा लेना था ही बिकेम इंसॉल्वेंट. ओके, तो कितना भी कर लूं पैसा नहीं देने वाले, मालूम पड़ेगी अभी बैड पेपर देने वाला नहीं है, तो इसका हम क्या राइट ऑफ कर देंगे. तो बैड डेब्ट्स राइट ऑफ कर दो. तो लेस फ्रॉम डेटर्स and add to bad debts. तो less from debtors and add to bad debts. तो debtors में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और bad debts में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. क्यों सर, ये एडजस्टमेंट में दिया होगा, इसके दो इफेक्ट आएंगे. ओके, तो ये तो एक्चुअल बैड डेब्ट मैंने उड़ा दिया. अब ये है ओके नेट रिकवर बैड डेब्ट्स. ये जो बैड डेब्ट्स है, ये जो अमाउंट है डेटर्स का, वो कब रिकवर करेंगे, अगले साल पैसा आएगा. इसका पैसा कब आएगा, अगले साल आएगा. ये साल आने वाला था, उसमें से जो नहीं आने वाला मैंने माइनस कर दिया. तो नेट अमाउंट रिकवरेबल ऑफ डेटर्स इन नेक्स्ट ईयर, ये अमाउंट है. अब आउट ऑफ ₹1 lakh आई एम फीलिंग दैट, और बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, कि एवरी ईयर 5% ऑफ कस्टमर डू नॉट पे माई ड्यूज. तो उसका प्रोविजन मैं आज कर दिया. तो मेरे को लग रहा है कि 5% लोग पैसे नहीं देने वाले. ओके, तो ये 1 लाख है, तो 1 लाख का 5% कितना होगा, 5000. तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स. मैं बता था बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स. अगेन क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स. ओके, तो ये एडजस्टमेंट ने उसका इफेक्ट. अब प्रेजेंटेशन ऑफ बैड डेब्ट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो देखो इधर ना, ये बैड डेब्ट्स ये कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस डेट में दिया रहेगा. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, ये न्यू बैड डेब्ट्स है जिसमें दिया होगा, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड बैड डेब्ट्स. न्यू आरडी और न्यू पीडी, ये भी जिसमें दिया होगा, तो अगेन क्या आएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स. ये ओल्ड आरडी थी, ये कहां दिया रहेगा, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा. कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा. ओके, लेकिन हम क्रेडिट में लिखते हैं क्या, नहीं, हम डेबिट से माइनस करेंगे. तो ओल्ड आरडी विल माइनस लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स. ये कहां दिया, आरडी कहां दिया रहेगा, ऑलवेज ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा. बट वी डोंट राइट ऑन क्रेडिट साइड, हम क्या करेंगे, डेबिट में से माइनस करेंगे. तो डेबिट में से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा होगा, क्रेडिट इफेक्ट होगा. ओके, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू बैड डेब्ट्स. तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका एक इफेक्ट, और जो एडजस्टमेंट में दिया है उसके दो इफेक्ट. ओके, ओके, नाउ one more point. Note, if any figure is, if above figure is positive, if this figure is positive, then profit and loss account debit side. And if the above figure is negative, अगर ये नेगेटिव आया मींस इसमें आरडी ज्यादा है, मींस उसको बोलेंगे एक्सेस प्रोविजन, ये एक्सेस रिजर्व, ये एक्सेस प्रोविजन है या एक्सेस रिजर्व है, then it will be recorded on profit and loss account credit side. ओके, तो if this figure, ओके, ये अगर ये अमाउंट पॉजिटिव है तो पीएनएल डेबिट, और ये अमाउंट अगर नेगेटिव है तो पीएनएल क्रेडिट. ओके, ये पॉइंट बाकी रह गया था. तो ये sums, this sums is not required.
इसको हम जान देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स. Reserve for discount on debtors. Reserve for discount on debtors. Now suppose debtors given balance sheet 1 lakh, and I am free out of that 5, that is out of his 1 lakh, 5% of customer will not pay the amount. तुमने 1 lakh में से 95,000 माइनस कर दिया, कितना बचा? 95,000. ना उसमें से कुछ कस्टमर्स मेरे को देंगे प्रॉम्प्ट पेमेंट, देंगे प्रॉम्प्ट पेमेंट, या जो मेरी बिजनेस पॉलिसी है कि 1 महीने के अंदर पेमेंट नहीं करोगे तो डिस्काउंट देंगे हम तुमको 1%. 15 दिन में पेमेंट नहीं करोगे हम डिस्काउंट देंगे तुमको 3%. ओके, और तुम 1 हफ्ते में पेमेंट नहीं करोगे हम तुमको डिस्काउंट देंगे 5%. ओके, तो कुछ कस्टमर इस पॉलिसी का फायदा उठाते और पेमेंट 1 हफ्ते में या 15 दिन में, 1 महीने में करती है. ओके, पॉइंट. अब हमको नहीं मालूम है करेंगे नहीं करेंगे, इन बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा है कि 3% ऑफ कस्टमर जितने भी मेरे डिटेल्स है उसमें 3% लोग मेरे को पैसा टाइम पे दे देंगे जो मैंने पॉलिसी दी है वो. तो उसका ना ये फ्यूचर एक्सपेंस है. तो आउट ऑफ 95,000 which is recoverable in next year, out of that 3% of customer will take the advantage of policy of my business and they will make the payment in time limit. ओके, तो उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा. तो इस केस में ये फ्यूचर एक्सपेंस है, तो इसका प्रोविजन तुम कब करोगे? इसका प्रोविजन तुम ये साल ही करोगे. ओके, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस फ्रॉम डेटर्स. कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट. डेटर्स कहां पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे. तो लेस फ्रॉम डेटर्स व्हिच इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट. एंड एड टू डिस्काउंट अलाउड. एड टू डिस्काउंट अलाउड कहां पे आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो जो भी ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दिया होगा उसमें ऐड करना है. तो जब भी डेटर्स आए, डेटर्स मीन सेल्स, जब भी सेल्स करते हो तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं. ओके, तो जब भी डेटर्स आएगा तब डिस्काउंट अलाउड आएगा, और जब भी क्रेडिटर्स आएगा तब डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा. ओके, तो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू डिस्काउंट अलाउड. एंड डिस्काउंट अलाउड कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, नाउ नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. सेम वे, सामने वाले सप्लायर ने मेरे को पॉलिसी दी है, इन दैट केस आई विल मेक द पेमेंट इन 1 month or 15 days or in 1 week, and I will take the advantage of the supplier's business policy. तो मैं जब एडवांटेज लूंगा, मैं हर से करता हूं कि जब भी टाइम लिमिट दिया है, सामने कस्टमर डिस्काउंट देता है मेरे को, ओके, कि 1 हफ्ते दिन में पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट दूंगा. आई ऑलवेज टेक द एडवांटेज ऑफ दैट पॉलिसी. ओके, तो जब सामने वाला क्रेडिट डिस्काउंट देगा, ओके, तो क्रेडिट 1 लाख है, उसमें से 3% डिस्काउंट दे रहा है मेरे को वो. ओके, तो 1 लाख का 3%, 3,000, तो मेरा क्रेडिट कम हो जाएगा. तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स. सर कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट. क्यों सर? लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स. क्रेडिट कहां पे आता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आता है. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे आता है. ओके, पॉइंट क्लियर. तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट में माइनस करेंगे, तो कौन सा इफेक्ट? डेबिट इफेक्ट. एंड एड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. सप्लायर सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड है. वो किसको डिस्काउंट दे रहा है? मेरे को डिस्काउंट दे रहा है, हमारे पैसे डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे लिए इनकम है. तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड एड टू डिस्काउंट रिसीव्ड. और डिस्काउंट रिसीव्ड कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. तो लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स डेबिट इफेक्ट एंड एड टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट इफेक्ट. क्यों सर? डिस्काउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा. सेम वे यहाँ पे लेस फ्रॉम डेटर्स कौन सा इफेक्ट? एंड एड टू डिस्काउंट अलाउड. एंड एड टू डिस्काउंट अलाउड कौन सा इफेक्ट? अगेन डेबिट इफेक्ट. क्यों सर? डिस्काउंट अलाउड कहां पे आएगा? डेबिट साइड पे आएगा. ओके, नाउ लेट अस सी प्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर्स. ओके, क्रेडिट की जरूरत नहीं है बिकॉज एक क्रेडिट दिया रहेगा उसमें डिस्काउंट माइनस करना है हम लोग को सारे एग्जाम करने के बाद. बट डेटर्स का इंपॉर्टेंट है. डेटर्स ले लो पहले, जो ट्रायल बेस दिया है वो ले लो. उसमें जितनी जिसमें बिल रिसीवेबल डेज ऑन अनरिकॉर्डेड सेल्स वो माइनस एड लेस कर दो जो भी है. फर्स्ट माइनस बैड डेट्स, फर्स्ट माइनस एक्चुअल बैड डेट्स, then you minus RD or PD,
जो पैसा फ्यूचर में नहीं आने वाला है। फिर जो पैसा आने वाला है उस पर डिस्काउंट दूंगा ना मैं, पॉइंट ईयर। तो इतना आने वाला था, इतना लेना था करंट ईयर में, उसमें से करंट मेरे को मालूम पड़ेगा पैसे नहीं देने वाले। अब ये जो पैसा फ्यूचर में आएगा उसमें से 5% लोग मेरे को मालूम है पैसे देने वाले, माइनस कर दिया। तो अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव नेक्स्ट इज हाउ मच, दिस अमाउंट 95,000, उस पे हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। ओके, तो लेस फ्रॉम डेटर्स मींस क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एड टू डिस्काउंट अलाउड। ओके, अब इसका फॉर्मेट क्या है, डिस्काउंट अलाउड, ये कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया रहेगा। तो कहां पे ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये कहां जिसमें दिया रहेगा, उसके दो इफेक्ट, एक तो हम क्या करेंगे, डेटर्स में माइनस करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, एंड सेकंड इफेक्ट एड टू डिस्काउंट अलाउड। इफ इन ट्रायल बैलेंस ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट दिया रहेगा, ये कहां दिया रहेगा, ओल्ड रिजर्व डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट में दिया रहेगा। सर कौन से क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में दिया रहेगा, लेकिन हम कभी इसमें लिखेंगे नहीं, हम डेबिट में से माइनस करेंगे। तो लेस फ्रॉम डिस्काउंट अलाउड, ये कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया रहेगा। हम क्रेडिट में लिखेंगे नहीं, हम डेबिट में से माइनस करेंगे। हम कहां से माइनस करेंगे, डिस्काउंट अलाउड माइनस करेंगे। तो इफ इन ट्रायल बैलेंस डिस्काउंट अलाउड इज गिवन, कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, डेबिट साइड। ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट कहां दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस अकेडमी दिया रहेगा, माइनस करना है। और न्यू डिस्काउंट है लेस फ्रॉम डेटर्स एंड एड टू डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो ये भी हो गया हम लोग का। नाउ एडजस्ट नंबर 23, मैनेजरियल कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो बहुत बार जो कंपनी में या फर्म में मैनेज होते हैं, ओनर गिव प्रॉफिट commission based on profit, okay, as an motivate the manager कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना कमीशन होगा। तो मैंने ट्राई करेगा कि मेरे बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आए, ओके, पॉइंट हियर। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको उतना कमीशन मिलेगा। ओके, नाउ अब इसके दो इफेक्ट, इसको दो तरीके से हम पे करते हैं। ओके, तो बिजनेसमैन पे कमीशन मैनेजर इन टू फॉर्म्स, या इसके ऐसा समझ लो, इसके कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ओके, और सेकंड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मींस सारे इनकम में से, मैं बात कर रहा हूं पीएल की, सारे इनकम ले लेंगे, उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस कर देंगे। ओके, वो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ओके, से फॉर एग्जांपल दिया है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एट रेट 10%। तो इनकम में से सारे एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो समझो आया वो 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस का 10%, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 1 लाख, कमीशन हम माइनस करेंगे 10,000, और नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विल बी 90,000। और वो 90,000 कहां पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा। इसको बोलेंगे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सेकेंड केस है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मींस इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करोगे, क्या मिलेगा हम लोग को, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेस कमीशन, और बाद में आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो जो अमाउंट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा उस पे हमको कमीशन देना है। पॉइंटर, इसमें जो बिफोर अमाउंट 1 लाख अमाउंट आ रहा है उस पर कमीशन होगा, और इस केस में 1 लाख अमाउंट आएगा, उसमें से कमीशन माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, उसका 10%, तो उसको बोलेंगे रिवर्स। इसको मैं बोलता हूं डायरेक्ट मेथड, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर लिया, जो प्रॉफिट आया उस पर ले लिया हमने। इसमें ऐसा नहीं होगा, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे,
क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, लेस कमीशन जो कि हमको मालूम नहीं है, तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन, उस अमाउंट पे हमको कमीशन लेना है। ओके, तो इसका रिवर्स वर्किंग करना पड़ेगा। ओके, तो देखते इसको कैसे करना है। वैसे तो मैं तुमको लॉजिकली समझाऊंगा जब हम सम्स करेंगे तभी, सिर्फ एक बार जो तुम्हारे मॉडल की मेथड दिया है वो मैं बता देता हूँ इधर। ओके, तो बिफोर प्रॉफिट बिफोर कमीशन है वो ले लो, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस इनटू रेट ऑफ कमीशन, इनटू रेट ऑफ कमीशन, रेट सब 10% है तो 10/100, तो 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 10,000। इस केस में प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ओके, तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग तो समझ में आएगा। से फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, थोड़ा तकलीफ होता है माउस से लिखने के लिए, ये माउस थोड़ा, ये लैपटॉप थोड़ा बहुत जुना है। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन कितना है, 6,30,000 है, कितना है, नाउ सपोज रेट ऑफ कमीशन इज 5%, कितना परसेंट है रेट ऑफ कमीशन, 5% है। ओके, पॉइंट है, तो हमको निकालना है, कमीशन निकालना है, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है, 6,30,000। ओके, वो तुम ले लो। ओके, इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना परसेंट है, 5% है, तो 5 ले लो, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कितना है, 5। ओके, तो चलो कैलकुलेट करो कितना आता है, कम ऑन टेल मी व्हाट इज अमाउंट, तो 6,30,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 105, तो कमीशन अमाउंट कितना आएगा, फटाफट यूज योर कैलसी एंड क्लेम द अमाउंट। कितना आ रहा है सर 30,000। राइट, तो जब बिफोर कमीशन दिया रहेगा, आफ्टर कमीशन ऐसे करना है तुम लोग को। ओके, पॉइंट क्लियर, तो इसको हम लॉजिकल भी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो दिस इज वैल्यू कमीशन, ओके, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, इसके सम्स भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ओके, तो हम अब लेक्चर